ओके बच्चों, अब हम लोग पेट्रोमाइजोन का रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टडी करेंगे. Basically, a simple type of respiratory system present in this animal, petromyzon, in which you will find 7 pairs of gill slits or gill pouches. Okay, or gill slit and gill pouches, both are different things. Gill sac or gill pouch, these two are same thing. First you see, you can notice here 7 pairs of gill openings on its body wall. You can see, can you see this? Hmm? Yes, sir. Okay, these are the gill openings, and there are two types of respiration, two types of water flow in this petromyzon, by which it takes the oxygen and gaseous exchange takes place. ये पिक्चर दिख रहा है आपको? See in this, Yes, sir. first you focus here. This is its respiratory system, in which blood vessels are not shown. Mouth, long rasping tongue, velum. Velum is leading into this thing. This is pharyngeal region, pharynx, and this is inner pharynx. Okay. And inside this pharynx, you will find the 7 pairs of gill pouches. These are gill pouches. ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर है, ये गिल पाउच है. ओके, इसके बीच में खाली जगह है. और गिल्स कहां पर हैं? गिल्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ gill pouches, not shown in this figure, but you can see a dark line here inside this gill pouch or gill sac. This can also be called as gill sac or gill pouch. Okay, can you see this dark border? Okay, so this is gill, and why this is dark? If you analyze it, then you will find the presence of gill lamellae. Gill lamellae are the protrusions from this gill sac into the pharyngeal space inside the gill sac. ओके, ये थोड़ा सा और वाइड होगा. फिर से देखते हैं. गिल सैक, दिस इज gill sac, and the membranous structure which is separating the gill sac or gill pouch. In this membranous structure क्या है? Blood vessels है, branchial arc है. Okay, this is called as gill lamellae. नहीं, branchial arc नहीं है. Okay, इसमें blood vessels है, gill lamellae. और आप देखेंगे कि फीसेस
पेट्रोमाइजोन को भी फिश के कैटेगरी में रखा जाता है. पेट्रोमाइजोन इज ऑल्सो फिश. So पेट्रोमाइजोन इज ए प्रिमिटिव फिश. ओके, पेट्रोमाइजोन के बाद cartilaginous fishes, bony fishes, like this we have. So this gill lamellii have the presence of many gill lamellii. इतना बड़ा नहीं. Okay, many projections like this is there where the gaseous exchange takes place. These are gill lamellii. Sorry, yes, this is gill lamellii. Okay, and this membranous septum, these are called as इंटरब्रैंकियल सेप्टा. मैंने इसको गिल लैमली बता दिया था क्या? ये वाला जो है दो गिल पाउच को जो सेपरेट किए हुए हैं. आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This one, this is गिल लैमली. ठीक, ये सब गिल पाउच के बीच में गिल लैमली है. और इस गिल लैमली पर यहाँ पर प्रोट्रूजन्स हैं. These are gills where the gaseous exchange take place. So what happened? दो तरह का कंडीशन है. एक तो ये है कि जब ये पेट्रोमाइजोन इज फीडिंग, यानी जिस समय यह सक कर रहा है, तो इसका माउथ जो है, बक्कल फनल जो है, एनिमल के स्किन पर अटैच्ड है. ओके, so in this condition it is not taking the water from its mouth. Actually it is taking blood meal from the mouth at that time during feeding. Correct? Okay, नॉस्ट्रिल से ये पानी नहीं लेता है. ओके, ये माउथ से पानी लेता है. तो ओपनिंग माउथ ही है ना इसके पास. ओके, Yes, sir. और दूसरा कंडीशन होता है जब नॉन फीडिंग स्टेट में, जब ये खाना नहीं खा रहा है. तो इस समय तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना नहीं खा रहा है. ओके, तो it is during this state it is taking water from its mouth, and then water is entering in the pharynx, and from the pharynx region it is coming out of this gill slit. Okay, it is bathing the gills, the water which is coming out from the mouth. From the internal pharynx it is entering the gill pouch, और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो गया. और इस लैमली में ब्लड वेसल्स हैं. कौन से ब्लड वेसल्स? डॉर्सल एरोटा से निकला हुआ इफरेंट आर्टरी. ओके, इफरेंट आर्टरी जो है इसमें गया हुआ है, और साथ ही नीचे से वेंट्रल अरोटा से आया हुआ अफरेंट आर्टरी इसमें गया है. तो वेंट्रल अरोटा से अफरेंट आर्टरी is taking the deoxygenated blood here. Okay, deoxygenated blood is entering in the gill lamellii, और गिल लैमली से ये यहाँ पर कैपिलरी नेटवर्क है पूरा, क्योंकि इधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. किससे? एरोटा से, वेंट्रल एरोटा से. और यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होकर के फिर कैपिलरीज के थ्रू कलेक्ट होकर के यह थ्रू इफेरेंट आर्टरी इट एंटर्स इन डॉर्सल अरोटा, और फिर डॉर्सल अरोटा से ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है. ठीक है, डॉर्सल अरोटा से पीछे की तरफ चला गया डॉर्सल अरोटा. ठीक है, बैकवर्ड्स बॉडी में पोस्टेरियरली. क्या हो गया माउस को?
ठीक है। तो इससे सप्लाई हुआ बॉडी को और बॉडी के और भी हिस्सों को, हर सेगमेंट में डोर्सल, खैर वो सर्कुलेटरी सिस्टम में बताएंगे आपको। यहाँ पर क्या हो रहा है, गिल पाउचेज में सर्कुलेशन क्या है, इट इज कमिंग फ्रॉम वेंट्रल अरोटा, वेंट्रल अरोटा से किसके थ्रू, अफरेंट आर्टरीज के थ्रू हर गिल लैमेली में गया ब्लड वेसल, और इसी में ऊपर से डोर्सल अरोटा से भी एंटर कर रहा है ब्लड वेसल, और ये गिल्स को पूरा सप्लाई हुआ ब्लड वेसल। आप देखेंगे कि फिश, इसमें फिश जैसा गिल डेवलप होना शुरू हो गया है इन दिस एनिमल। ओके, तो अभी हम आपको यहाँ गिल का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, तो ये आपको कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। जब फिश पढ़ाएंगे उस समय गिल का बताएंगे स्ट्रक्चर। ओके, अभी तक बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. मेनली क्या Yes, gaseous exchange is taking place at this surface. Okay, कौन सा सरफेस, इंटरनल लाइनिंग ऑफ द गिल पाउच वेयर द गिल लैमेली आर प्रेजेंट। इतना याद रहेगा, इतना लिख सकते हो। अब ये नॉन फीडिंग स्टेट में है तब तो कोई दिक्कत नहीं, माउथ से ले लिया वाटर को बात किया, सब गिल लैमेला से बात हो रहा है और फिर बाहर चला गया, किससे, गिल स्लिट से बॉडी के बाहर गया। बट इन ड्यूरिंग नॉन फीडिंग, ड्यूरिंग फीडिंग स्टेट व्हाट विल हैपन, माउथ तो इसका बिजी है, वहां वैक्यूम क्रिएट किए हुए है, तो क्या उस समय सांस नहीं लेगा ये? ड्यूरिंग फीडिंग स्टेट कैसे सांस लेगा ये? ओके, मुंह छोड़ेगा तो एनिमल भी प्रे भी इसका छूट जाएगा। तो अब ये क्या करता है, इसमें एक मैकेनिज्म होता है, एक्चुअली दिस इज इनसाइड, ये पूरा फेरिंग्स किसके अंदर है आपको, दिस फेरिंग्स इज क्या है, इसके अंदर गिल बास्केट है, क्योंकि ये तो बॉडी वाल हो गया, ठीक है। तो गिल बास्केट इज समवेयर, ये वाल है गिल बास्केट के अंदर, ठीक। अब गिल बास्केट से, एंड गिल बास्केट इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स, ठीक है। तो ये मसल को फैलाने से क्या होता है, ये क्या करता है, इसमें वाटर एंटर कर जाता है गिल स्लिट से, और इसी गिल स्लिट से फिर वाटर, ये पिचका दिया, पिचकारी जैसा, पहले ड्रॉपर जैसे होता है ना, फुला दिए तो पानी खींच लिया, इधर से बंद है तो इससे पानी वाटर आ गया, फिर अपने मसल से बास्केट को ये पिचका लेगा, स्क्वीज करेगा, तो फिर पानी जो है बाहर निकल जाएगा, यानी यहीं से पानी एंटर किया गिल स्लिट से, यहीं से बाहर निकल गया। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग नॉन फीडिंग स्टेट। क्लियर है? yes, sir. Yes, sir. ठीक, see, this is clear in this picture. Okay, during feeding state, water is entering the gill and coming out from the same gill. From the same gill, water is coming out. ये कहीं ट्रेवल करके किसी दूसरे गिल से नहीं निकल रहा है पानी, इसी गिल में घुसा, इसी गिल से निकल गया। और ड्यूरिंग नॉन फीडिंग स्टेट, वाटर इज एंटरिंग फ्रॉम माउथ गोइंग इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स से फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होके सारे गिल लैमेली को बात करके ये निकल गया ड्यूरिंग नॉन फीडिंग स्टेट। Okay, hope this is clear to you. See, Yes, sir. Yes, sir. see in this figure, in this figure you can see gill lamella. Okay, these are stand gill lamellas, and gill lamella के बीच में बहुत सारा blood vessels हैं, capillaries हैं, red you can see,
इसको ट्रैवर्स किए हुए हैं और इसी कैपिलरी से गिल लैमेली गिल इपिथेलियम से गैसियस एक्सचेंज हुआ और फिर कैपिलरी में चला गया। ओके, या कैपिलरी से गैस बाहर आ गया। तो इस तरह से बहुत सारे गिल लैमेली प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पर? गिल पाउच में। ये गिल पाउच है, गिल पाउच का इनर लाइनिंग पर दिस गिल लैमेलीज आर प्रेजेंट। होप दिस इज क्लियर। सिंपल है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, Yes. Sir. ठीक है, इसको हम लोग जल्दी जल्दी खत्म कर देते हैं। इसके टेक्स्ट। The respiratory organ of lamprey comprise 7 pairs of gills or branchial pouches or branchial sacs between the respiratory pharynx and the body wall. रेस्पिरेटरी pharynx और बॉडी वॉल के बीच में क्या है? ब्रैंकियल पाउच। ठीक है, किसको कह रहा है? ये रेस्पिरेटरी pharynx और बॉडी वॉल। सी, दिस इज बॉडी वॉल, क्योंकि गिल स्लिट जो है बॉडी वॉल में छेद है, ओपनिंग है। ओके, तो क्या कैसा है बॉडी वॉल? दिस इज इट्स बॉडी वॉल एंड दीज आर द ओपनिंग। दो तरह के ओपनिंग है, एक बाहर वाला ओपनिंग है और एक अंदर वाला ओपनिंग है। बाहर वाला ओपनिंग जो है वो बॉडी वॉल में है, अंदर वाला ओपनिंग जो है दिख, बड़ा करूं क्या इसको? Two openings. This opening is slit, which is present in the body wall, and this opening is the internal opening of the gill sac, which is opening in the pharynx. This is its pharynx. ये बीच का रीजन खाली हिस्सा ये pharynx है और यह इंटरनल ओपनिंग जो है pharynx में ओपन हो रहा है। आया बात समझ में? ये बॉडी वॉल हो गया इसका, और दिस इज द इंटरनल ओपनिंग, दिस इज स्लिट, एक्सटर्नल ओपनिंग। ओके, Yes, sir. respiratory organs of lamprey comprise 7 pairs of gills or branchial pouches or branchial sacs between the respiratory pharynx and the body wall. The branchial pouches open directly into the respiratory tube and have no direct connection with alimentary canal. ठीक, ब्रैंकियल पाउच जो है डायरेक्टली कहाँ हो रहा है? रेस्पिरेटरी ट्यूब में ओपन हो रहा है। दिस इज रेस्पिरेटरी ट्यूब, जिसको रेस्पिरेटरी फेरिंग्स बोल रहे हैं। रेस्पिरेटरी फेरिंग्स या रेस्पिरेटरी ट्यूब एक ही बात है। ठीक है, तो ब्रैंकियल पाउच इंटरनल जो ओपनिंग है उससे कहाँ हो रहा है? रेस्पिरेटरी ट्यूब में, और रेस्पिरेटरी ट्यूब का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है एलिमेंट्री कैनाल के साथ। क्लियर? आगे चले। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बता दिए थे आपको। Third point, the gill pouches have numerous vascular gill lamellae developed on their inner surfaces and are separated from one another by wide membranous interbranchial septa. So this is interbranchial septa, this one. हर गिल पाउच जो है दूसरे गिल पाउच से इंटरब्रैंकियल सेप्टा से अलग अलग है।
इंटरब्रैंकियल सेप्टा। क्लियर? Yes, sir. ठीक। वाइड मेम्ब्रेनस, वाइड है, मेम्ब्रेनस है, इंटरब्रैंकियल सेप्टा। और इसी इंटरब्रैंकियल सेप्टा के इनर लाइनिंग पर क्या है? वैस्कुलर है। वैस्कुलर मीन्स इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, हाई डेंसिटी है, पूरा नेटवर्क है ब्लड वेसल्स का इसमें, इसलिए इसको वैस्कुलर बोले। इसीलिए गिल्स जो है, मछली का भी गिल्स देखोगे फिश का, बहुत रेड होता है। व्हाई? बिकॉज इट इज हाईली वैस्कुलर। ओके, न्यूमरस है, न्यूमरस है। अभी हम बताए आपको, ये सारे क्या है? गिल लैमलीज है। न्यूमरस है। गिल लैमली किससे बना है? गिल इपिथेलियम से। न्यूमरस गिल लैमलीज डेवलप्ड ऑन द इनर सरफेसेस। इसके इनर सरफेसेस पर, इनर सरफेसेस पर, इस साइड नहीं, इस साइड, दोनों तरफ गिल सैक में बहुत सारे न्यूमरस गिल लैमलीज हैव डेवलप्ड, आर प्रेजेंट। और ये क्या है? सेप्टम है। Each gill pouch opens independently into the exterior by an external gill slit. External gill slit है जो बॉडी वॉल में है, and the respiratory pharynx by internal gill slit. That is internal opening or internal gill slit, external gill slit. Clear है? चलते चले? Yes. Okay. Water enters into the respiratory pharynx through the 7 pairs of, इतना जल्दी टाइम कैसे खत्म हुआ? 7 pairs of gill pouches and passes out through the same route. वाटर जो है इसी गिल पाउच से अंदर जा भी सकता है और बाहर भी निकल सकता है ड्यूरिंग फीडिंग स्टेज, फीडिंग टाइम। सेम गिल पाउच स्लिट से वाटर एंटर होगा और बाहर होगा। ठीक। But in larval stage, water current enters through mouth and goes out through the gill slits. Larval stage में ये 7 slits external gill slits नहीं होते हैं, ठीक है? Instead, there is only one present. Suppose करो कि ये एक और बाहर से वाल है, ठीक है? और इसमें 7 का ओपन हो रहा है गिल स्लिट, और इसमें फिर देयर इज वन ओपनिंग एट द लार्वल स्टेज। तो इट इज लाइक दिस इन लार्वल स्टेज। क्या होता है? वाटर करंट एंटर्स थ्रू माउथ। और दूसरी बात यह भी है कि लार्वल स्टेज में ये पैरासिटिक नहीं है, सकिंग का काम नहीं कर रहा है लार्वल स्टेज में, और फीडिंग जो है इसका फिल्टर फीडिंग है, माइक्रोफेगस है, जिसकी वजह से यह फीडिंग करते टाइम भी वाटर का इंटेक ले रहा है, ठीक है? इसीलिए पानी जो है क्या है? हमेशा माउथ से ही आ रहा है, ठीक है, लार्वल स्टेज में। एंड एडल्ट स्टेज में दोनों तरीके से, ये माउथ से भी एंड थ्रू द गिल स्लिट से भी इंटेक हो रहा है। आपको दिखाऊंगा एक फिगर जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा एट द लार्वल स्टेज इनका गिल स्लिट्स किस तरह का है। कैन यू सी दिस? दिख रहा है ये फिगर? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देखिए इसमें बहुत सारे क्या है? गिल्स है इसमें एट द लार्वल स्टेज, 7 नहीं,
ये डिजेनरेट होके ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस 7 बच जाएंगे। ओके, अभी आप काउंट करोगे कितने सारे हैं, देखिए एक गिल पाउच, ये सब गिल पाउच है। 1 2 3 4 5 6 है ना, बहुत सारे हैं, 7 8 9 10 11 इस तरह से। अब ये दिस इज इंटरनल गिल स्लिट इसका। अब एक्सटर्नल गिल स्लिट जो है इज दिस वन, ओके, और दिस इज द ब्रैंकियल गिल पाउच, दिस इज कॉल्ड एज ब्रैंकियल गिल पाउच। ये लार्वल स्टेज का टीएस है थ्रू फेरेंजियल रीजन। यू कैन ऑब्जर्व दीज आर लैमली, गिल लैमली दिख रहा है आपको, गिल लैमली। Yes, sir. बहुत साफ, Yes, sir. साफ दिख रहा होगा, बहुत सारे गिल लैमली हैं। किस पर? इंटर ब्रैंकियल सेप्टा पर। इंटर ब्रैंकियल सेप्टा ब्लू कलर से मैं कर रहा हूं, देखिए यही है इसका जो वाल है जिस पर गिल लैमली अटैच्ड है, यही इंटर ब्रैंकियल सेप्टा है। और इस इंटर ब्रैंकियल सेप्टा के हेड पर ब्लड वेसल्स है, ओके, ब्लड वेसल्स, हर इंटर ब्रैंक यहाँ पर ब्लड वेसल, इसका टीएस है, ये ऊपर गया हुआ नीचे गया हुआ ब्लड वेसल है। गिल पाउच जहां पर इंटरनल स्लिट है, दैट वन, दिस इज द थिंग। ठीक, ये मैंने फिगर इसलिए दिखाया आपको कि लार्वल स्टेज पर देखिए बहुत सारे ओपनिंग्स जो हैं वो इज ओपनिंग इन ब्रैंकियल गिल पाउच। सो व्हाट दे आर सेइंग इट, इसका नाम नहीं दिया है, लेबल किया है। ओके, दिस वन इज ब्रैंकियल गिल आर्च, ब्लड वेसल, गिल लैमली, गिल फिलामेंट, इसको गिल फिलामेंट कह रहा है, ब्रैंकियल गिल फरो, हाइपरफेरेंजियल, डोर्सल अरोटा, ब्रैंकियल बास्केट कार्टिलेज, ये है सब ब्रैंकियल बास्केट कार्टिलेज, ये भी है कार्टिलेज, चारों तरफ ये कार्टिलेज, ये भी कार्टिलेज, ठीक है, वेंट्रल अरोटा है, ये क्या है, हाइपोफेरेंजियल रिज। ओके, इट इज नॉट लेवल्ड हियर, इसको क्या बोल रहा है, lumen of the pharynx, branchial furrow, branchial pouch, this one is branchial pouch, gill filament, blood vessel, branchial gill arch हो गया, lumen, gill lamely, branchial basket, cartilage, hypopharyngeal ridge। चलो इंटेगुमेंट स्किन को ही कहते हैं, ठीक है, ये स्किन है इसका। This is a very clear picture in which you can see neural sheath, and this is spinal cord, notochord, notochordal sheath, okay? आप देख लेना बात। चलो, तो ये अब डिफरेंस आपको क्लियर हो गया, लार्वल स्टेज में कैसा है गिल और एडल्ट स्टेज में कैसा है, समझ गए। छठा पॉइंट, इन लार्वल स्टेज वाटर करंट एंटर्स थ्रू माउथ एंड गोज आउट थ्रू द गिल स्लिट्स। लार्वल स्टेज में हमेशा मुंह से ही जाएगा, क्योंकि गिल स्लिट से लैटरल एंट्री इसमें पॉसिबल नहीं है एट द लार्वल स्टेज। और दूसरी बात, लार्वल स्टेज जो है वो फिल्टर फीडिंग है, वो सकर तो नहीं है, ठीक है, फिल्टर फीडिंग है तो खाना खाते समय भी अपना
रेस्पिरेशन कर सकता है, और खाना नहीं खाते समय भी वाटर इनटेक तो करते रहेगा, तो उससे उनका रेस्पिरेशन होता रहेगा। क्लियर है? आगे चलें। Yes, sir. Yes. Okay. The elastic branchial basket is elastic, made up of cartilage but elastic. Is compressed by the contraction of the muscle to throw the water like jets through the gill openings, while during inspiration the branchial basket expands. Okay. ब्रैंकियल बास्केट जो है जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से वाटर जो है जेट के जैसा बहुत ही स्पीड में, ठीक है, किसी पन्नी में छेद कर दो और दबाओ ऊपर से, तो छेद से पानी एकदम तेजी से निकलेगा। ओके, पन्नी में पानी भर दो, छेद कर दो, फिर ऊपर से प्रेस करो, उसी तरह से निकल गया स्क्वीज करने से। और जब एक्सपेंड करता है तो ये वाटर उसमें आ जाता है। ठीक, तो ये फिल्टर जिस समय फीडिंग कर रहा है एडल्ट, उस समय ये कर सकता है, और जिस समय फीडिंग नहीं कर रहा है उस समय भी ये कर सकता है, दोनों टाइम। 8th point, the gaseous exchange takes place inside the gill pouches, bearing vascular gill filaments or lamellae. ठीक, देखिए ये फिगर दिख रहा है, ये फिगर आप समझोगे क्योंकि अब आगे सर्कुलेटरी सिस्टम है, यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका ओवर, ये 8 पॉइंट में। तो इसको गैसेस एक्सचेंज को समझने के लिए, टेक्स प्लेस इनसाइड द गिल पाउचेस बियरिंग वैस्कुलर गिल फिलामेंट्स और लैमेली। तो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है वैस्कुलर गिल फिलामेंट और लैमेली के सरफेस पर।